This call is now being recorded. Yeah, good morning, everyone. In the last class, we did talk about the basic idea of trigonometric functions, and we learned certain methods using which we can find the values of all trigonometric functions. Cot x is given as minus 5 by 12, and x lies in the second quadrant. Find the values of the other 5 trigonometric functions. A very similar question is already discussed with you all. Quick check. Do remember, since there's a negative sign involved in cot x, I cannot use the triangle method, which we already done in 10th class. So we will be using the formula approach. Right. So using those formula, that simply means we have 1 plus cot square x is equal to cosecant square x, 1 plus, this is 5 by 12 whole square, and this will be your cosecant square x, which gives us cosecant square x equals 1 plus 25 by 144, which is 169 by 144, and clearly this would give me cosecant x as plus minus 13 by 12. Yeah, the perfect square numbers, right? But is it plus or minus? That will be Plus. decided using, yes, good, second quadrant. So we have the following rule. In second quadrant, it is the quadrant of sine and it's reciprocal. So reciprocal is cosecant, so that will be plus only. Using the value of cot x, I could have written in the beginning itself tan x as minus 12 by 5. Similarly, once I have cosecant with me, reciprocal of this would give me the sin x. Now we left with secant, and right, cos. and cos. So 1 plus tan square x is, wait for a second, some urgent call is coming. Yes. So 1 plus tan square x आपका हो गया secant square x. So secant x is 13 by 5. Okay, चल ठीक है, वो बस idea, if it is clear, we'll substitute the value, and again secant is going to be negative. So बस हमें वो ध्यान रखना है. So secant square x is 1 plus 144 by 25, 169 by 25, और secant x is secant square x आ गया है 169 by 25, and this will give secant as plus minus 13 by 5. Minus 13 by 5. X in the second quadrant, therefore the answer is bound to be negative. ये आ गया. Just make the reciprocal of this. I will have the value of cos x. सर हम कॉट की वैल्यू के अंदर भी तो डायरेक्ट निकाल सकते थे क्योंकि कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन. हाँ बिल्कुल, yes, that always, such things you can always do. Already I have the cos and sin with me, उन्हें divide करा, cot आ जाएगा. तो those formulas absolutely true, you can use. तो हो सकता है 2 steps कम ही हो जाएं. You can always do that. Based on this,
ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस रहे थे, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बात करने वाला हूं, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाउ वी ऑलरेडी नो sin 60 degrees, sin 60 Root degrees 3 by 2. Root 3 2 root 3 by 2. Similarly, say cos 60 degree, half. 1 by 2. so these are certain standard angles we can find. But if I now say what is sine 300 degrees, if I say tan 1020 degrees, so for that there is a simple approach and method which you all need to understand. Check it out. This is all positive, sin reciprocal हो गया, then tan आ गया, and then यहाँ पर cos का आ गया. So this is referred to as my first, second, third and fourth quadrant. I will explain what do I mean by this. If I say theta is here, in the second quadrant it is pi minus theta. In the third quadrant it is pi plus theta. In the fourth quadrant it is 2 pi minus theta. What does that imply? To understand that, let me directly consider one simple rule. Say if you are given with any angle theta, general angle theta hai, write the angle theta in the form of 90 degree into n plus minus alpha, where alpha is some acute angle, and that alpha will be surely given as your standard angle, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and so, right? Express whatever angle is given to you in the form of multiple of 90 degree. अब 90 डिग्री को आप धीरे धीरे वही पाई बाय 2 लिखना शुरू कर दीजिए. तो एक्सप्रेस योर एंगल इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज. देन look for this n. N may be even or n may be odd. These are the only two possibilities. If n is even, sine will remains the sine, cos will remains the cos, and so on, right? But if n is odd, sine will change to cos and cos will change to sine, tan will change to cot and vice versa, secant and cosecant. I will explain everything to you. Please make a note of it. It is very, very important to understand. And believe me, there are 5 marker question in class 12th. The basic fundamental concept जो start होता है वो ये है. And number of students ये चीज अगर नहीं कर पाते हैं, 11th में सीखते तो 12th में 5 मार्क के क्वेश्चन आपके गए. So please make a note of it separately. I will then only continue. I'm waiting for a minute. And meanwhile, mark your attendance quickly in the chat box. सर अगर इवन होगा तो सीकेंड भी सीकेंड में ही बदलेगा ना? Yes, yes, same रहेगा. There is no change. Tan will remains the tan, but ये अब अलग कलर से मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ.
दिस प्लस माइनस। अब वो प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो आई विल एक्सप्लेन द मेथड। तो either it will be plus or minus, either it will be plus or minus, but that depends. So make this table and then I'll take the example. So I think I don't need to write it, idea clear हो चुका है कि ये कैसे सेम रहेगा। n is a natural number, तो n नेगेटिव की हम यहां बात ही नहीं कर रहे हैं, केशव, ठीक है। तो n मैंने जो केस लिया है यहाँ 90 इंटू एन, जब मैं लिखूंगा आई विल एक्चुअली कन्वर्ट दिस इनटू अ नेचुरल नंबर, इवन अगर नेगेटिव में भी आ रहा होगा। हाउ दैट कैन बी डन? प्लीज रिमेंबर आई ऑलरेडी डिस्कस दीज फॉर्मूला। साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स cos x. cos of minus x is cos x. But I think I haven't discussed these formulas. तो अभी आप please note कर लीजिए because I will be making use of these formulas also. And tan of minus x is minus of tan x. I will not take the remaining three as of now. Let us keep it quite simple initially. सर अगर वहां पे अगर हम साइन के आगे भी माइनस लगा दे तो प्लस साइन एक्स बन जाएगा। कहाँ पर कह रहे हो ये, इस फॉर्मूला में? ये सर अगर इसी के अंदर हम माइनस साइन इंटू माइनस एक्स लगाए तो क्या होगा उसमें? ऑब्वियसली ये माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो दैट वुड बी साइन एक्स ओनली। ओके सर। Okay, let us now understand what do we mean by this. Directly consider one question. Find the value of this. Sine 31 pi by 3. Initially, I have observed from my personal experience, students are comfortable with degrees in the beginning only. Later on, आपको समझना है कि आपको रेडियन में ही आना है। Let me change this into degrees. वैसे easy डायरेक्ट रहेगा रेडियन में करना, मैं दोनों मेथड से बता देता हूं आपको ये क्वेश्चन। ये इंटू 60 हो जाएगा, पाई बाई 3 60 डिग्रीज, सो दिस वुड बी कितना आ गया 1860 degrees, right? Now you express the angle as a multiple of 90 degrees and then plus minus some angle will be there. So if you note carefully, this is 90 into क्या लिख सकते हैं 20, 1800 हो गया, सीधा 1800 आ गया, और प्लस 60 डिग्रीज। इफ यू आर एबल टू थिंक डायरेक्टली इट इज गुड, नहीं तो क्या करिए, आपको 90s के मल्टीपल ढूंढने हैं इन 1860, गो फॉर अ सिंपल डिवीजन। तो आप जब ये डिवाइड करेंगे तो चेक इट आउट, ये किस पे जाएगा, ये आ गया, और दो ये एक साथ उतारा है 6 and 0, देयर विल बी 1 0। सो 20 कंप्लीट डिवीजन हो गए हैं, 90 के मल्टीपल निकल गए, और रिमाइंडर बच गया है 60 डिग्रीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां आती है, ये मेरा n है विच इज इवन हेयर। तो आपको रूल क्या बताया था, इफ n इज इवन sign will remains the sign only. Recall this, if n is even sign will remains the sign, but उससे पहले प्लस माइनस आ जाएगा। यही करा है हमने यहाँ, साइन विल रिमेन साइन ओनली और ये एंगल
एक्यूट एंगल अल्फा लिख दिया विद प्लस माइनस। अब आप चेक करिए मेरा एंगल कितना था, एक्चुअल एंगल 1860 डिग्रीज। Which quadrant this angle lies? In which quadrant this angle will lie? 90 के 20 रोटेशन चला दो, 90 के 20, तो सोच के देखिए ये 4 रोटेशन हो गए, 8 हो गए, 12, 16 and 20. After 20 rotations I am back to this, और फिर उसमें प्लस 60 डिग्री कर दिया। Observe carefully. The final angle that will terminate in the first quadrant, और first quadrant में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? इट्स पॉजिटिव, तो प्लस आ जाएगा। एंड व्हाट इज साइन 60 डिग्री? √3/2, your required answer. So value of sin 31 π/3 हमने निकाल लिया as √3/2. You will take some time to understand. I know initially थोड़ा सा difficult लगता है. Let me use the alternative method to find this value. And I always recommend to choose this option. बाकी आप ऐसे भी करेंगे, that is not an issue. चलिए, sin 31 π/3 लिखा है, आप जरा डिवाइड करना, पाई को भूल जाओ, 31/3 है, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 10 plus π/3, 10 पाई प्लस π/3, पाई तो आएगा ही ऊपर न्यूमरेटर में। अब एक बार जरा आप यहाँ एलसीएम लेकर चेक कर लो, क्या जो ऊपर लिखा है वही नीचे है? नाउ yes sir, 10 पाई को अगर ये π/3 मेरा स्टैंडर्ड एंगल अल्फा आ गया, और अब क्या होगा, मैं 10 पाई को क्या लिख सकता हूं, 20 इंटू π/2। आपको बताया ना कि मुझे इवन या ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 देखना था, तो करा वही है जो मैंने वहां पर किया था। यस महिम, एनी डाउट इन दिस प्रेजेंटेशन? सर एक और एक्सप्लेन कर सर, एक और एक्सप्लेन कर आप चेक करिए 31 π/3 है, आप डिवाइड करो जरा इसे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को देखो, 31/3 अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 10 तो कंप्लीट निकल गया, मींस दिस वुड बी 10, और पाई यहाँ पहले से ही है, 10 पाई आ गया, और प्लस कितना बच रहा है रिमाइंडर, सोच के देखिए, π/3। चलो ऐसे करके देख लेते हैं, 3 पे डिवाइड करा, 3 1 3, ठीक है, जब आप 1 उतारेंगे यहाँ पर ये 10.99, राइट, तो बेसिकली दिस 31/3 कैन बी रिटन एज 10 + 1/3, ये लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय पाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय पाई, सो 31 π/3 क्या लिख सकते हैं, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, ये आ जाएगा। दिस स्टेप इज आई थिंक क्लियर। यस सर। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगी, तो हम इतना लंबा मेथड नहीं लगाएंगे, सिंगल स्टेप में आप ये कर पाएंगे। नाउ लुक एट दिस 10 पाई, 10 पाई कैन बी रिटन एज 20 इंटू π/2, क्योंकि मुझे π/2 के मल्टीपल को अलग करना है, 90 डिग्री के मल्टीपल को, ये फॉर्मूला है। तो अब मैंने इसमें क्या नोट करा, ये लिखा गया दिस स्टेप आल्सो, आई होप इट इज आल्सो क्लियर। yes sir, यस सर। अब 20 इज योर इवन नंबर, और इफ दिस इज इवन, क्या रूल बताया था,
साइन का साइन ही रहेगा विद प्लस माइनस। अब प्लस आएगा या माइनस वो डिपेंड करेगा आपके मेन एंगल के ऊपर जो क्वेश्चन में गिवन है 31π/3। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लुक केयरफुली। 31π/3 को अगर मैं लोकेट करूं 10π के तो कंप्लीट साइकिल चल गई। 10π का मतलब क्या होता है, ये पाई हो गया, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, 9π and 10π। I am back here। और इसमें अब क्या ऐड करा है, π/3। थोड़ा सा और आगे आ गए, π/3 जब ऐड करा तो दिस इज माय फाइनल पोजीशन। आई एम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज योर स्टैंडर्ड एंगल, योर रिक्वायर्ड आंसर। Sir, why don't we just use 360 plus? सी इस क्वेश्चन में 360 क्या, मैं सीधा 720 से भी कर सकता था, राइट। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल मेथड। जनरल मेथड का मतलब एंगल कुछ भी दिया हो हम उसको इजीली सोच पाए। वंस यू हैव अ गुड एनफ प्रैक्टिस देन ऑफ कोर्स मैं इसको सीधा 2π में ही लेकर जाऊंगा, 360 के मल्टीपल में ही, वो धीरे धीरे हमारा कंसेप्ट बनेगा। तो आई एम डिस्कसिंग द मोर जनरल अप्रोच जो हर तरह के क्वेश्चन में वैलिड हो जाए। दो तीन क्वेश्चन होने दो, उसके बाद आप अपने आप आंसर देने स्टार्ट करेंगे, आप सभी अगर ध्यान से सुनेंगे। ये है फर्स्ट थिंग, Cos कॉस 1710 ये पॉजिटिव हो जाएगा। यस, तो ये पहली बात, उस फॉर्मूले से ये लिख लिया। अब 1710 को सोचिए 90 के मल्टीपल अलग करने हैं तो 90 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, सर ये पूरा डिवाइड हो रहा है 19। ओके चलो, यस ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब यहां क्या लिखा जाएगा, 19 इंटू 90 डिग्री कंप्लीट चला गया, तो यहां भी तो कुछ बच तो रहा है। आवर स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्रीज। आई होप दिस इज क्लियर। ये डिवाइड तो अब आपको आना चाहिए करना, बेसिक रूल बता दिया है कि 90 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं। तो अगर ये किया, ये नंबर क्या आ गया है, n है मेरा, विच इज कमिंग आउट टू बी ऑड हेयर। ऑड में मैंने क्या रूल बताया था, कॉस का क्या चेंज हो जाता है, ऑड Sin। इट इज साइन, जो भी एंगल यहां लिखा था, विद प्लस माइनस। यहां तो बाई चांस क्या हुआ, साइन 0 कितना होता है, 0, तो प्लस माइनस 0 का मतलब 0 ही आ जाएगा, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हैव अ रूल इन फ्रंट ऑफ यू। बार बार कह रहा हूं, जब तक ये नहीं पता होगा, याद होगा, यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। तो ये आपके सामने होना चाहिए इनिशियली। चेक दिस आउट। 6th क्वेश्चन है जैसे साइन ऑफ 765 डिग्रीज। वन ऑफ द वे, एज अभी मैं भूल गया किसने कहा था ये चीज, कि अगर हम इसको 360 के मल्टीपल में कर लें
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे 720 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज सोच सकते हैं डायरेक्टली। अब ये 720 डिग्रीज मैंने अचानक से क्या सोचा है, आपको पता है 360 362 जा। रोटेशन, ये इसका 2 टाइम्स हो रहा है, तो 720 डिग्रीज प्लस 45 डिग्री लिख दिया। और फिर मैं आपको ये चीज अगर आप सोच के देखें, बता चुका हूं, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, cos 2n pi plus theta is cos theta, tan n pi plus theta is tan theta। ये आपको मैं लास्ट बता चुका हूं क्लास में, जब मैंने पीरियोडिक फंक्शन का बेसिक आइडिया आपको दिया था। ग्राफ्स के थ्रू और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब I can write this 720 as, क्या लिख सकता हूं मैं, 2 into 360 डिग्रीज। अगर ये 360 डिग्रीज का मल्टीपल आ गया है, आप इसे डायरेक्ट साइन 45 लिख देंगे और वो हो जाएगा 1/√2, योर रिक्वायर्ड आंसर। और अब सेम चीज जो मैं बताना चाहता था, चैट बॉक्स में किंशुक हैज ऑलरेडी मेंशन्ड कि यहां तो चलो हमने इस तरह से सोच लिया, नहीं तो मैं क्या करता, जनरल अप्रोच क्या मैंने बताई है, ये साइन 765 है, राइट दिस 765 एज द मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज। बात वही है जो ऊपर करा है, ये आ जाएगा। 8 क्या है, इवन नंबर, इवन का मतलब साइन का साइन ही रहेगा विद प्लस माइनस। और अब हमने देखा ये 90 के 8 राउंड चले हैं। 8 राउंड का मतलब क्या होता है, 90 के 8 राउंड्स, ये 4 राउंड हो गए, ये 8 राउंड्स हो गए। और फिर प्लस 45 डिग्री का मतलब आई एम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर साइन इज पॉजिटिव, योर रिक्वायर्ड आंसर। चेक आउट 7th क्वेश्चन। चलिए, यहां भी मैंने फॉर्मूला बताया नहीं था, बट बेसिक आइडिया जैसे साइन में होता है, माइनस विल कम आउट, तो एक्चुअल में ये माइनस ऑफ कोसेकेंट 1410 डिग्रीज है। बताइए 90 के मल्टीपल अलग करके मुझे यहां, सर 1916 19 into 16, 1915 जा। ओके, एंड देन प्लस कुछ, सॉरी प्लस में कितना, 15। सर 16 करेंगे तो माइनस करना होगा सर। चलो अब आप चेक करो, गुड, एक स्टूडेंट ने 16 में सोच के कुछ बताया और एक ने 15 में बता रहा है कोई। तो पहले मैं इजी अप्रोच चलता हूं जो जनरली हम सोचते हैं, मैं 16 वाला भी कंसेप्ट बताऊंगा, बट अभी देखिए, मान लीजिए आपने क्या सोचा होता, 19 into 15 और प्लस 60 डिग्रीज। चेक दिस आउट, दिस इज ऑड नंबर, दिस इज ऑड नंबर। ऑड में क्या हो जाता है, क्या बताया था, सेकंड टू सेक, वो चेंज हो जाएगा सीकेंड में विद प्लस माइनस, बाहर वाला माइनस तो चलते रहेगा। नाउ अब आपको किसके बारे में सोचना था, मेरा क्वेश्चन चेंज हो चुका था इसके बारे में, ये इसकी वैल्यू देखनी है मुझे,
कॉसिकेंट की, नॉट द सीकेंट, ये याद रखना। तो कॉसिकेंट में मेरा क्वेश्चन था, तो किस क्वाड्रेंट में आ गया ये एंगल, बताइए। विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट। सोचिए ध्यान से। 90 के 15 राउंड चला दो, तो अब आप, सर फोर्थ। यस, आप चेक करिए 90 के 15 राउंड्स। क्विक प्रैक्टिस से आपको पता होगा कि 12 राउंड्स में तो सीधा वापस आ जाऊंगा ना, हर 4 के मल्टीपल में तो मैं वही वापस आ रहा था। तो 12 राउंड्स हो गए, 13, 14, 15 राउंड और प्लस 60 डिग्री। आई एम इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव। 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 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट नेगेटिव होता है। चेक इट। नेगेटिव। यहां सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने बताया, आप इसको नहीं देख रहे हो, क्वेश्चन मेरा कॉसिकेंट है। तो कॉस सीकेंट इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सीकेंट 60 डिग्रीज विच इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, योर रिक्वायर्ड आंसर। कितना होता है सीकेंट 60 डिग्री? 2। इट्स 2। 2। ठीक है, राइट। अब जैसे देखो, इधर मैं देख रहा हूं निखिल ने बताया कि ये तो 90 इंटू 16 -30 के इक्वल भी होता है। तो द टोटल वे हाउ आई एम गोइंग टू लुक एट दिस प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन वो बदल जाएगा। चेक इट आउट। ये क्वेश्चन सेम बट डिफरेंट अप्रोच से। कॉसिकेंट क्या लिख दिया यहां, 90 इंटू 16, और अब की बार -30 हो रहा, 30 डिग्री हो रहा है। अब क्या फर्क पड़ेगा, ये नंबर अब की बार क्या आ गया, इवन। इवन। इवन के केस में कॉसिकेंट का कॉसिकेंट ही रहेगा विद प्लस माइनस। विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में आप चेक कर चुके हैं आपका एंगल था? फोर्थ। वो तो आप इसको भी देखोगे तब भी वही आएगा कि वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कॉसिकेंट क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉसिकेंट 30 डिग्री कितना होता है? 2। तो चॉइस इज यूअर्स। आप उसको 15 के मल्टीपल में लेकर जाते या उसको 16 के मल्टीपल में लेकर जाते, क्योंकि डिवाइड करेंगे आपको 15 या 16 कोई एक नंबर ध्यान में आएगा। प्योरली यूर चॉइस, बोथ विल गिव द सेम आंसर। Waiting for your answer. 8th question. डिग्रीज में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है सर √3। ओके, चलिए बाकी भी करिए। प्लीज मेक इट श्योर कि ये आप स्टेप आपको क्लियर है। आपने 19 को 3 पे डिवाइड करा,
6 क्वोशंट आएगा, तो 6 पाई लिख दिया जो कंप्लीट आ गया है। लॉजिकली ये लिखकर चेक कर लीजिए। अब क्लियरली 6 पाई जो है मैं 12 into pi by 2 लिख by सकता 2. हूं, दो इट इज नॉट द कंपल्सरी स्टेप, क्योंकि लॉजिक से क्लियर है कि ये इवन मल्टीपल ही आने वाला है पाई बाय 2 का। तो दिस इज इवन मल्टीपल आ गया। tan ही रहेगा ना। So first quadrant. 6 पाई का मतलब क्या था? Sir, third quadrant. विच क्वाड्रेंट? थर्ड आ रहा है, ओके। 6 पाई का First. चलो चेक करते हैं, एक सर मिनट। थर्ड। ओके, ये 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। 6 पाई में प्लस पाई बाय 3 हुआ है, इट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चेक दिस आउट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, योर रिक्वायर्ड आंसर। Chalo, I can see few students have given the correct answer already in the chat box. And do remember, all the answers which you are giving in the chat box, they are also being recorded. मैंने शायद last class के बाद आपको एक PDF शेयर किया होगा, तो उसमें क्लियर है आपके सामने कि किस टाइम पे आपने क्या क्या चीजें चैट बॉक्स में लिखी हैं, तो आप कितना रिस्पॉन्सिव रहे हैं, कितने अटेंटिव हैं, वो सब इससे पता चलता है। चलिए, 9th क्वेश्चन। फार्मूला यूज किया, विच फार्मूला? Sin minus x is equals to minus sin. नेक्स्ट, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 4 पाई माइनस पाई बाय 3, और 3 पाई में अगर आप सोचना चाहें तब सोचो कितना ऐड होगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। Sir, root 3/2. ओके, चेक दिस आउट। अगर मैं 3 पाई के सम में लिखना चाहता हूं तब क्या आएगा यहाँ पर? So plus 2 pi by 3. 2 pi by 3, right? Now it is your choice. आप इसे ऐसे सॉल्व करना प्रेफर करो या ऐसे। आई वुड जनरली रिकमेंड, क्योंकि ये 2 पाई बाय 3 में मुझे दोबारा से सेम अप्रोच लगानी पड़ेगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू यूज दिस, आई विल गो विद दिस। अगेन आपकी चॉइस है। तो चेक दिस आउट, ये क्या हो गया? माइनस ऑफ, अब क्लियरली ये इवन मल्टीपल है, साइन का साइन रहेगा। विच क्वाड्रेंट इज दिस? Fourth quadrant. फोर्थ। यस, देखिए अब क्विक आइडिया लगता है। 4 पाई का मतलब क्या था? ये 2 पाई, ये 4 पाई। पहले 4 पाई से तो मैं यहां आ गया, बट माइनस पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है? फिर इस डायरेक्शन में आ गए। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो एंगल एक्चुअल में ये बन रहा है यहां इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। Negative. सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। राइट, आई कुड सी नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। मृदुल माइनस लिखा है, आप चेक करो, देयर इज सम मिस्टेक। अब क्लियर हो गया होगा। एंड प्लीज ट्राई आउट इवन यूजिंग दिस अप्रोच। जो मैंने कहा है ना कि हम कोशिश करते हैं चलो अवॉइड करें, बट इन केस लेट से आपके माइंड में यही अप्रोच स्ट्राइक करती,
then you should know how to use this and solve. I'll end the class in 2 minutes only. For your homework from NCERT itself, and the questions for your homework for today. So you can check it out. अब कुछ डिग्रीज में लिखे हैं, कुछ रेडियन में, आपकी चॉइस है. अगर आप सेम उसी फॉर्मेट में आंसर को सॉल्व करना चाहते हैं, और यू कैन इवन change them into degree to radian or radian to degrees, and then you can continue. Yes, I know, Kaishuk, we have 2 periods, but only for today, since your UTs are going on, I want you to practice. So इसीलिए आज मैं कम ले रहा हूँ, so that you can continue with your completion of the work. क्योंकि अभी भी आपका set theory और relation function, most of the students are in a defaulter list, so they haven't completed their work. तो इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूँ आपके पास 40 minutes, 30 minutes. At least do your some work, complete that work, और attempt all these questions. साथ में ये वो कंसेप्ट है जो हम ऑलरेडी कल की क्लास में कर चुके थे. So this will be your result homework sheet. Any doubt to anyone? 10th क्वेश्चन में फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस को समझना. Please mark your attendance quickly in the chat box again finally. एंड डू नॉट लीव द मीटिंग. आप ज्वाइन रखिए, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई डाउट आता है, यू कैन ऑलवेज आस्क. बट नाउ आई विल नॉट टीच. आप अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं, और होमवर्क वाले इन्हीं क्वेश्चंस को अभी कर लीजिए. थैंक यू.